Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at home. I am your social science teacher Ms. Deepika Bandel, and today we will start our chapter number 2. As you all know, we have completed chapter 1 in school only. So next chapter number 2, Resources of India part 2. In first chapter, we have studied resources of India, in which resources are soil, water, forest and related to wildlife. But in chapter 2, resources are agriculture, crops, minerals and power resources. So let's start the chapter. Presently, the term agriculture is used in a broad sense. It not only includes cultivation but also forest, fisheries, animal rearing and dairying in it. India is an agricultural country. Geographical diversities in India create favorable climatic conditions for the production of different types of crop. In this para, as we all know, that term agriculture is used in a broad sense. It doesn't only includes cultivation but also forests, fisheries, animal rearing and dairying in it. एग्रीकल्चर सिर्फ खेती से ही मतलब नहीं रखता है. एग्रीकल्चर फॉरेस्ट से भी रिलेटेड रहता है, जंगल से भी. फिशरीज इन द सेंस फिश प्रोडक्शन, जहाँ पे फिश का कल्टीवेशन किया जाता है. एनिमल रियरिंग, डेयरिंग, पशुओं का पशुपालन किया जाता है. डेयरिंग यू ऑल नो in it. As we all know that India is an agricultural country, geographical diversities in India create favorable climatic condition for the production of different types of crops. सारी क्रॉप्स जो भी हम जिनकी भी खेती की जाती है उनके लिए एक अलग फेवरेबल कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. Only 11% of the total area of world is cultivable. In total world, only 11% of area is there in which cultivation can be possible. Among world, India has 51% area under cultivation. In world, 11% is cultivable area, but in India, 51% area is under cultivation. Only one crop is grown in many countries of the world, while in India, 2 or 3 crops are grown in some areas. इंडिया के अलावा बाकी सभी जगह पे एक बार में एक ही चीज़ को उगाया जा सकता है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा 3 क्रॉप्स भी उगाई जा सकती हैं. टोटल एरिया विच कुड बी इरीगेटेड इन इंडिया इज़ इक्वल टू टोटल कल्टिवेबल एरिया ऑफ चाइना. 58.2% लेबरर्स ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. टोटल मतलब रोज़गार के लिए 58.2% लेबर्स ऐसे हैं जो रोज़गार के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए. 66% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स एंड 34% फॉर कमर्शियल क्रॉप्स. 66% जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर ग्रो यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स. जो भी खेती जो खाने की अनाज उगाने के लिए की जाती है उस 66% एग्रीकल्चर लैंड ऐसा है जहाँ पे अनाज उगाया जाता है, और 34% ऐसा है जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जो खाने के अलावा बाकी चीज़ों में भी यूज़ की जाती हैं. Agriculture contributes 56.1% in gross national product. Now second is contribution of agriculture in Indian economy. अब एग्रीकल्चर का इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या योगदान है वो देखेंगे. एग्रीकल्चर इज़ अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. इट इंक्लूड्स बोथ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग. कंट्रीब्यूशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी सीन इन इंडिया इकोनॉमी एज फॉलोज. इंडिया में कल्टीवेशन के साथ कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी है. मतलब फर्स्ट वन इज 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड nourishes on Indian agriculture and 2/3 population of India depends on agriculture for their livelihood. 71% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो किस पे डिपेंड है, इंडियन एग्रीकल्चर पे. और 2/3 पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो अपने रोज़गार के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. Second, 2/3 labor power of the country is engaged in Indian agriculture. Many people get their employment indirectly also. Either they are engaged in handicrafts or in small industries based on agriculture products in rural areas. Agriculture can give employment to large number of people.
2/3 लेबर पावर जो कंट्री की है वो किसकी वजह से, इंडियन एग्रीकल्चर की वजह से है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रोज़गार इनडायरेक्टली भी है एग्रीकल्चर के थ्रू, जैसे जो एग्रीकल्चर से जो क्रॉप्स हम ऑब्टेन करते हैं उन चीज़ों से जाके वो रॉ मटेरियल जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ से जो लेबर है वो उनको रोज़गार किसके थ्रू मिलता है, एग्रीकल्चर के थ्रू। एग्रीकल्चर कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और एग्रीकल्चर के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। थर्ड, एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल फॉर क्लोथिंग। क्लोथ इज़ मेड फ्रॉम कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एंड वुड पल्प। Leather industry is also based on agriculture. It is the basis of all the industries using agricultural products as raw material. एग्रीकल्चर से हमको रॉ मटेरियल भी मिलता है। फूड के अलावा जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर ना उसमें से फूड प्रोडक्शन की खेती, बस फूड की खेती नहीं होती, बाकी और भी चीज़ें हैं जिनकी खेती एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती है, जो खाने के अलावा भी और चीज़ों की जा सकती है। जैसे क्लोथ है जो किस किस चीज़ों से बनता है, कॉटन है, जूट, सिल्क, वूल एंड वुड पल्प। लेदर इंडस्ट्री भी किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज़ यूजिंग प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। जितना भी रॉ मटेरियल है जो सारी इंडस्ट्रीज़ में जाता है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर से उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है। कॉटन इंडस्ट्री, jute industry, edible oil industry, sugar and tobacco, all these industries are based on agricultural products. Agriculture contributes about 34% to the income from agriculture products. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री जहाँ से खाने का तेल जिस इंडस्ट्री में बनाया जाता है, शुगर इंडस्ट्री, टोबैको, और ये सारी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पे बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के थ्रू। एग्रीकल्चर पूरा 34% कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है हमारी इंडिया की इनकम में। Indian agriculture is nurturing the increasing population. Agricultural products. Indian agriculture is nurturing the increasing population. Agricultural products gives carbohydrates, proteins, fat and vitamins from food products. Mahatma Gandhi has said about the production and supply of food. Life depends on agriculture. Where agriculture is not beneficial, life itself could not be beneficial there. इंडियन एग्रीकल्चर इज़ नर्चरिंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो भी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो रोज़ दिन ब दिन जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो किस पे डिपेंड है, मेनली इंडियन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, खेती किसानी नहीं होगी, तो उनको फूड या और भी चीज़ें जो सारी बेस्ड हैं एग्रीकल्चर पे वो सभी प्रोवाइड नहीं की जा सकेंगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमको क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स एंड विटामिन्स फ्रॉम फूड प्रोडक्ट। जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनसे कुछ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कुछ से प्रोटीन, कुछ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो कुछ से विटामिन्स मिलेंगे। महात्मा गांधी ने ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के और जो फूड सप्लाई है उसके बारे में क्या बोला था, लाइफ डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। वेयर एग्रीकल्चर इज़ नॉट बेनिफिशियल, लाइफ इटसेल्फ कुड नॉट बी बेनिफिशियल देयर। उन्होंने क्या कहा था कि जो भी इंसानी लाइफ है वो किस पे डिपेंड है, मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। जहाँ एग्रीकल्चर बेनिफिशियल नहीं होगा वहाँ लाइफ भी बेनिफिशियल नहीं होगी। जहाँ पे एग्रीकल्चर खेती किसानी नहीं की जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, वहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ अवर कंट्रीज इकोनॉमी। बैकबोन इन द सेंस रीढ़ की हड्डी, जो जिस पे पूरा निर्भर होते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर भी बैकबोन है किसकी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। इट्स सक्सेस और फेलियर डायरेक्टली अफेक्ट द फूड प्रॉब्लम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल इनकम। उसकी सक्सेस हो या उसका फेलियर हो, या तो वो उस चीज़ में सक्सेस हो या फेल हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, फूड प्रॉब्लम पे। वो हमारी फूड प्रॉब्लम को इफ़ेक्ट करेगी, जैसे कि इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल इनकम। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। Therefore, it is said that the importance of soul in human body is the same as the importance of agriculture in Indian economy. जैसे कि हमारी बॉडी सोल आत्मा पे निर्भर है, जैसे कि हमारी बॉडी में जितना इम्पोर्टेंस आत्मा का है, उसी तरह इंडियन इकोनॉमी भी मेनली इम्पोर्टेंट किसका है, एग्रीकल्चर का। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया।
अकॉर्डिंग टू सीज़न एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी। कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं जो फेवरेबल कंडीशन में ही उगाई जा सकती हैं, जिनका अलग अलग सीज़न होगा, उसी सीज़न में वो क्रॉप उगाई जा सकती है। अकॉर्डिंग टू सीज़न, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। अकॉर्डिंग टू स्टडी, फूड क्रॉप्स एंड कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स स्टडी के अकॉर्डिंग दो टाइप्स की क्रॉप्स होंगी, एक फूड क्रॉप जिससे खाने की चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा सके, और दूसरा कैश एंड कमर्शियल क्रॉप जिससे चीज़ों को दूसरे उसमें लेके इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाई जा सके। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन, जून टू जुलाई, and ready to reap by the end of spring season after Dashera, October to November, are called खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जिनको उगाया कब जाता है रेनी सीज़न के स्टार्टिंग में, जैसे कि जून से जुलाई के बीच में, और उनका एंड रेडी टू रीप बाय द एंड ऑफ स्प्रिंग सीज़न, और जिनकी बाद में उगाने का काम जून से जुलाई होता है, उस क्रॉप की कटाई कब होती है स्प्रिंग सीज़न में, मतलब दशहरा के बाद अक्टूबर से नवंबर में। और उन क्रॉप्स को जिनको उगाया रेनी सीज़न में जाए और स्प्रिंग सीज़न में जिनकी कटाई की जाए, उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि एग्जांपल है राइस, जवार, बाजरा, मेज, सोयाबीन, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, सेसमम आर द चीफ खरीफ क्रॉप्स। Second one is Rabi crops. The crops which are sown in October to November after Dashera and are ready to reap by the beginning of summer season in March to April are called Rabi crops. वो क्रॉप्स जो बारिश के टाइम पे उगाई जाती हैं जून से जुलाई के बीच, और जिनकी कटाई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है, वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं। लेकिन जस्ट खरीफ क्रॉप के बाद, जो खरीफ क्रॉप्स की कटाई के बाद जो क्रॉप उगाई जाए, जिनको अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगाया जाए, और समर सीज़न मार्च से अप्रैल के बीच में जिनकी कटाई की जाए, वो क्रॉप्स होती हैं रबी क्रॉप्स। जैसे कि वीट, ग्राम, बार्ली, मस्टर्ड, टोबैको आर द मेन रबी क्रॉप्स। Next one is Zaid crops. The crops grown in summer, especially vegetables and green fodders, are called Zaid crops. वो क्रॉप जो जस्ट रबी क्रॉप्स के बाद के सीज़न में समर में उगाई जाए, जैसे कि वेजिटेबल्स, सब्जियां, ग्रीन फॉडर्स, जो ग्रीन फॉडर्स उगाई जाती हैं हरी भरी, आर कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स। Next one is food crops. By food crops we mean the crops which are the main component of food: rice, wheat, jawar, maize, bajra, gram, tar and other pulses are included in food crops. अभी तक हमने वो क्रॉप्स पढ़ी जो अकॉर्डिंग टू सीज़न थी, सीज़न के अकॉर्डिंग जिनको उगाया जाता है, मगर अब जो क्रॉप्स है वो अकॉर्डिंग टू स्टडी है। फूड क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो मेनली क्रॉप्स किस चीज़ की हो, जिसमें खाने की चीज़ों का उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, जैसे कि राइस, वीट, जवार, मेज़, बाजरा, ग्राम, टर एंड अदर पल्सेस आर इंक्लूडेड इन फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट वन इज़ कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स. Cash and commercial crops means the crops which are not used as food directly but they are sold to generate cash. वो क्रॉप्स होती हैं कैश और कमर्शियल क्रॉप्स, वो क्रॉप्स कहलाती हैं जिनको डायरेक्टली फूड के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि राइस, वीट, जवार, ये डायरेक्ट फूड के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन ये क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जिनको डायरेक्ट फूड के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बट दे आर सोल्ड टू जनरेट कैश, बल्कि उनको बेचा जाता है जिससे कैश जनरेट किया जा सके। जैसे कि दीज क्रॉप्स इंक्लूड कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, सोयाबीन, ऑयल सीड, शुगर केन, टोबैको, रबर एक्सेट्रा। जैसे कि कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी है, ये डायरेक्ट फूड में यूज़ नहीं किया जा सकता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद इनको सेल किया जाता है जिससे डायरेक्ट कैश जनरेट हो सके। The table given below shows the position of India in the world in production of some crops and their main producing states. अब ये टेबल जो नीचे दिया हुआ है वो इंडिया की रैंकिंग बताता है किस क्रॉप में कितना एरिया किस रैंक पे है वो, और कौन कौन सी जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा ये पाया जाता है। मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोड्यूसिंग एरिया इज़ गिवन हेयर। फर्स्ट वन इज़ वीट, जो कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड गुजरात। सेम एज राइस, बाजरा, बार्ली, ग्राम एंड पल्सेस, मेज, oil seed, groundnut, rapeseed and mustard, soybean, sunflower, tea, coffee, tobacco, sugarcane. These all you have to study by your own. Just read the name of the crop and in which state they are found.
Likewise, cotton, jute, opium, rubber, spices, cashew nut, flax, silk, potato. These rice is the main food crop of India and wheat ranks second. राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है? राइस का, चावल का. वीट रैंक सेकेंड, वेयर एज वीट रैंक सेकेंड. वीट की रैंक कौन सी है? सेकेंड. गेहूँ. इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, वीट कंट्रीब्यूट्स 12.7%, राइस कंट्रीब्यूट्स 40.5%, मिलेट्स 30.3% एंड पल्सेस 16.5%. Here I will tell you the meaning of opium. In third point it is given opium. Opium, the state in which the opium is production is done: Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Opium means अफीम, जहाँ पे अफीम का प्रोडक्शन किया जाए. रबर, you all know. Spices means मसाला, जहाँ पे मसालों के प्रोडक्शन होते हैं. Cashew nuts. Next is cashew nut. Cashew nut is found in state Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Goa, Odisha. Cashew nuts in the sense काजू का production. Then knowledge of type and methods of farming through visit of developed farm. अब खेती भी कई तरीके से की जाती है. फार्मिंग जो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैसे लोगे, जैसे जैसे आप उस जगह पे विज़िट करोगे या उनको देखोगे. विजिट ऑफ नियरेस्ट डेवलपमेंट फार्म कैन बी अरेंज to give knowledge regarding types of agriculture and system for the students. Ancient Indian agriculture, traditional agriculture, was basically a means of livelihood. Agriculture was practiced only to fulfill demands and needs of the local markets. As in the beginning, population was scant, agricultural land was in plenty, and also villages were not linked with each other. Hence, there was not much pressure to increase agriculture product. पहले के समय पे क्या हुआ जाता था? बेसिकली एग्रीकल्चर को ही रोज़गार का और अपनी लाइवलीहुड का साधन माना जाता था. एग्रीकल्चर ना कि लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल करता था बल्कि लोकल मार्केट की नीड्स को भी पूरी करता था. एज इन द बिगनिंग पॉपुलेशन वाज स्कैंट. पहले के समय में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कम होती थी, एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा से ज़्यादा होता था और विलेजेस भी एक दूसरे से लिंक नहीं थे. हैंस देयर वॉज नॉट मच प्रेशर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. इसलिए प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि पॉपुलेशन कम थी और लैंड ज़्यादा था. But this ancient system of agriculture was not sufficient to fulfill the needs of population, a fast rate population growing. But अब क्या है? अब पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है बट एग्रीकल्चरल लैंड डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है. उस वजह से क्या हो रहा है? जो पीपल्स की डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं किया जा पा रहा है, वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू वेरियस रीज़न. और उनके पीछे क्या कारण है? ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. दिन ब दिन जो एग्रीकल्चरल लैंड कम होते जा रहा है वो वेदर बेस्ड फार्मिंग. अब जो भी मौसमी फसलें उगाई जाती हैं जो मौसम पे बेस्ड होती हैं उनकी वजह से. स्कैरसिटी ऑफ रेन्स, जहाँ पे बारिश कम होती है. इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन एक्सेट्रा, जहाँ पे पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है. मेड द फार्मर डेस्परेट एंड स्प्रिटलेस. इसकी वजह से क्या हुआ? फार्मर डेस्परेट एंड स्प्रिटलेस. मेड द फार्मर्स डेस्परेट एंड स्प्रिटलेस. जब प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, कोई सी भी चीज़ का प्रेशर नहीं होगा तो फार्मर्स की भी स्पिरिट बनी रहेगी. बट जब एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं होगा तो दे विल ऑल्सो गेट स्प्रिटलेस. Therefore, it became necessary to adopt modern agriculture systems so as to increase and maintain the productivity of agriculture land. इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अब जो भी खेती है उसमें मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट किया जाए जिससे कि फसलों में भी प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हो और प्रोडक्टिविटी. एग्रीकल्चर लैंड्स जो कम से कम है मगर उनमें प्रोडक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ाई जाए मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके. Modern agriculture system is based on the idea of obtaining maximum profit in production and involve the use of improved seeds, balanced organic manure, fertilizer, irrigation, pesticide and machine etc. अब मॉडर्न टेक्निक्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं. उनमें इम्प्रूव्ड सीड्स होते हैं जहाँ पे बीज को इम्प्रूव किया जाए, बीज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए. ऑर्गेनिक मैन्योर खाद जो दी जाती है, फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड किए जाएँ, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स और मशीन.
इन सब के यूज़ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. मॉडर्न फार्मिंग इज ओरिजिनली साइंटिफिक फार्मिंग in which the contemporary invention and researches in the field of agriculture have played a major role. Now agriculture is not merely a means of livelihood but has become a profit earning occupation. अब मॉडर्न टेक्निक के यूज़ की वजह से क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर मेजर रोल प्ले कर रहा है, जिससे ना ही लोगों की लाइवलीहुड में इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक जो प्रॉफिट अर्निंग ऑक्यूपेशन है, मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग. In Madhya Pradesh, improved varieties of different crops have been developed. Improved variety means such variety of crops which are produced in large quantity and which are more resistant against diseases and pests. Some of the improved crops of Madhya Pradesh such as wheat, maize, paddy, etc. are given in the following table. अब मध्य प्रदेश में कुछ improved varieties of crops भी हैं, जैसे कि वो क्रॉप्स जिनमें वैरायटी ऑफ क्रॉप जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोड्यूस हो सकें, जिनमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो और विच आर मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज, और जिनमें बीमारियां, ये जो कीड़े लगने की कैपेसिटी भी कम हो. सम ऑफ द इम्प्रूव क्रॉप जैसे कि वीट है, मेज़ है, पैडी एक्सेट्रा आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल. ये टेबल में क्रॉप्स हैं और उनकी वैरायटीज़ दी गई हैं कि किस जैसे कि वीट है, वीट में भी वैरायटीज़ होती हैं, सुजाता, शरबती, विदिशा, MP 4010. पैडी में भी है, मेज़ में भी है, ग्राम में भी है, सोयाबीन में भी है. ये सारी वैरायटीज़ हैं जहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरायटी की प्रोडक्शन किया जाता है. द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, traditions of farming and the ratio of animals possessed by the farmer is called types of farming. On the basis of the availability of resources such as irrigation, fertilizers, machine, etc., farming is divided into following types. अब फार्मिंग भी टाइप्स कई तरीके से की जाती है. प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ट्रेडिशन ऑफ फार्मिंग, रेशियो ऑफ एनिमल्स पजेस्ड बाय द फार्मर इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अब ये टाइप्स हैं फार्मिंग के जहाँ पे हर जगह पे अलग अलग टाइप्स की फार्मिंग की जाती है. जैसे फर्स्ट वन इज़ जनरल फार्मिंग. When an agricultural farm is organized in such a way that its land is used for the production of different crops or for agriculture based occupation and each one becomes the source of income, then this type of farming is called general or normal farming. उस तरीके की फार्मिंग जिसमें एग्रीकल्चर फार्म को ऑर्गेनाइज करा जाए, उस तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाए जिसमें प्रोडक्शन जिस भी क्रॉप का कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग सुटेबल हो. Generally, the farmer adopts this type of farming to satisfy his domestic needs so that he can run his livelihood smoothly. The farmer select a crop, livestock business according to his need. जनरल फार्मिंग में फार्मर उन चीज़ों का प्रोडक्शन करता है जिससे उसकी खुद की जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सके, उसकी लाइवलीहुड जिससे स्मूथली चलता रहे. The farmer selects the crop, livestock business according to his need. जनरल फार्मिंग में किसान वो क्रॉप्स के प्रोडक्शन करता है जो उसके लिए सुटेबल हो, उसके लाइवलीहुड के लिए सुटेबल हो. Now second one is specific farming. That type of farming is called specific farming in which a farmer obtains 50% of the total income or more from only one crop. For example, if a farmer obtains 50% or more than 50% income of the total income from soybean only, we will call it soybean farm. There are some characteristics of specific farming such as nearby location of mandi or market, strong financial condition of the farmer, etc. The farming should not be affected much by the unfavorable conditions of the weather. Specific farming is a type of farming in which 50% of the total income or more obtained from only one crop. साल में अगर फार्मर को एक ही क्रॉप से उसकी साल भर की जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसकी फार्मिंग में, उसका 50% या 50% से और थोड़ा ज़्यादा अगर उसको एक ही क्रॉप से मिल जाता है तो उस तरीके की फार्मिंग को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक फार्मिंग. जैसे कि एग्जांपल है, उसने सोयाबीन का प्रोडक्शन किया और सोयाबीन से ही उसको 50 या उसकी जो टोटल इनकम उसने इन्वेस्ट करी थी दो फसलों की प्रोडक्शन में और एक से ही उसको उसका 50% या उससे ज़्यादा मिल गया है, तो उस फार्मिंग को क्या बोला जाएगा, सोयाबीन फार्म. क्यों? क्योंकि उसको उसकी इनकम का 50 और 50 से ज़्यादा ऑब्टेन किससे हो गया, सोयाबीन से. उस टाइप की फार्मिंग को बोला जाता है स्पेसिफिक फार्मिंग.
Now third one is dry farming. Dry farming, farming in the areas where the annual rainfall is less than 50 centimeter is called dry farming. In this system of dry farming, to grow crops, rainwater is preserved for a long time. Failure of crops is a common feature of dry farming. The main reason for this failure are insufficient and unusual rain, late arrival and early retreat of monsoon, no rain for a long time during cropping, low capacity of soil to hold moisture and low fertility of land. ड्राई फार्मिंग, ड्राई यू ऑल नो, ड्राई मीन्स सूखा। उस जगह फार्मिंग उस एरिया पे जहाँ पे जो सालाना रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी लेस हो, उस टाइप की फार्मिंग को बोला जाता है ड्राई फार्मिंग। और ड्राई फार्मिंग के सिस्टम में क्रॉप्स को उगाया जाता है, मगर रेन वाटर जो पूरे टाइम्स के लिए उनको अवेलेबल नहीं किया जा सकता, इसलिए रेन वाटर को प्रिजर्व कर लिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए। और इस मेन रीज़न जो इसकी फेलियर के लिए है वो है इनसफिशिएंट अनयूजुअल रेन, कम से कम रेन या लगातार बारिश का ना होना, लेट अराइवल एंड अर्ली रिट्रीट ऑफ मानसून, या फसल का पहले उगना उससे कई देर बाद बारिश का होना, नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए पानी का नहीं हो गिरना, लो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड मॉइस्चर। अगर कैपेसिटी सॉइल की अच्छी होगी मॉइस्चर को होल्ड करने की तो वो सॉइल में नमी को बनाए रखेगा, लेकिन अगर कैपेसिटी सॉइल की मॉइस्चर को होल्ड करने की नहीं है तो वो जल्दी से जल्दी सूख जाएगी। लो फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जहाँ पे उपजाऊ क्षमता जो होगी लैंड की वो कम होगी। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। In mixed farming, animals are also reared along with crop production. Mixed farming is based on the principle that 10 to 49% of the total income should be obtained from rearing of animals. Rearing of animals, it means that the production of crop is primary work and rearing of cattle is supplementary to it. The complementary relationship between crop production and animal rearing increases both the income and the productivity. The use of organic manure prepared from animal dungs add to fertility of soil. Mixed farming is a type of farming in which crop production is done with animal rearing. मिक्स्ड फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी, गाय पशुपालन भी किया जाता है। जिससे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ, वो उस काऊ से हमको खाद के लिए काऊ डंग से, एनिमल डंग से खाद बनती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। उसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन भी होता है, जिससे आधी इनकम किस पे बेस्ड होती है, एनिमल रियरिंग पे, और आधी बेस्ड होती है क्रॉप पे। मिक्स्ड फार्मिंग, दैट फार्मिंग इज़ नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट वन इज़ इरीगेटेड फार्मिंग। In India, wells, tube wells and irrigation canals are the main sources of irrigation. Generally, irrigated farming is practiced in area receiving less rainfall. As a result, the production of crop increases tremendously, and due to irrigation, the land can be used to raise crops throughout the year. Major products of irrigated farmings are paddy, sugarcane, wheat and cotton. इंडिया में वेल्स, ट्यूबवेल्स ऐसी जगह पे नल खोदे जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी हो, जिस जगह पे उस जगह पे पानी की कमी को किस तरीके से फुलफ़िल किया जाता है, इरिगेशन के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन किया जाता है। As a result, the production of crop increases tremendously, and due to irrigation, the land can be used to raise crops throughout the year. हमारे पूरे ईयर साल भर बारिश का होना पॉसिबल नहीं है, तो इरिगेटेड फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें इरिगेशन के थ्रू, ट्यूबवेल्स या कैनाल्स के थ्रू साल भर उनको पानी पहुंचाया जा सके और पूरी साल क्रॉप्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। जैसे कि पैडी है, शुगर केन है, वीट एंड कॉटन। Sixth one is organic farming. Organic farming is the method of farming in which fertilizers of organic origin as compost manure, green manure, production by vegetation, herbs, etc. and manure made of cow dung is used instead of synthetic chemicals and pesticides. The organic manures increase the fertility of the soil. Input cost is also very low and it has no adverse effect on human health as well as our environment. ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो फार्मिंग बिना किसी फर्टिलाइज़र्स के, पेस्टिसाइड्स के यूज़ किए बिना की जाए, उस खेती को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ की जाए, जैसे काऊ डंग, जिससे खाद बनाई जाए बिना किसी केमिकल्स की यूज़ के, जिस क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाए, उस टाइप की फार्मिंग को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग है। सिस्टम फार्मिंग
can be classified on the basis of methods of agriculture applied in the ownership on land. Thus, it is based on the economic and social activities and is called system of farming. There are mainly 5 types of system of farming which can be divided on the basis of ownership and nature of work. अब इस फार्मिंग्स के भी सिस्टम है, मतलब ओनर जो उस लैंड का ओनर है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मिंग की जाए. इंडिविजुअल फार्मिंग जहाँ एक ही इंसान जो उस लैंड का मालिक है उसी को राइट है उस फील्ड पे वर्क करने के लिए और वो जिस भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन चाहे वो खुद के लिए करता है. उस टाइप की प्रोडक्शन को वो फार्मिंग को बोला जाता है इंडिविजुअल फार्मिंग. बट नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव फार्मिंग. In this system of farming, land, livestock and other resources of all the members are kept under a society. All the members of the society work on the farm as directed by the managing committee of the society. कलेक्टिव फार्मिंग वो होती है इंडिविजुअल फार्मिंग के जस्ट अपोजिट. इंडिविजुअल फार्मिंग में एक ही इंसान जो उसका ओनर होता है वो फार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में जितने भी मेंबर्स उस सोसाइटी के हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं. कोऑपरेटिव फार्मिंग. Under this system of farming, all the agricultural activities and holding of farmers collectively and voluntarily are united with each other, but farmers' right of ownership on the land remains secured. All the farmers collect their land, labor and capital and cultivate collectively in the form of unit. All the functions are done under the direction of the elected committee. The profit is distributed among the members in the proportion of their holding and wages. There are 4 types of cooperative farming: cooperative super farming, government joint farming, cooperative customary farming, cooperative collective farming. cooperative farming जहाँ वो फार्मिंग होती है जहाँ एक से ज़्यादा और भी लोग कॉपरेट करके उस खेती के या प्रोडक्ट किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन को करें. Next one is government farming. In this system, the government officer manage all the activities of farm. अभी तक इंडिविजुअल फार्मिंग में ओनर रिस्पॉन्सिबल था, कलेक्टिव में सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं वो सब इंक्लूड थे, कॉपरेट में जहाँ पे ओनर के साथ साथ और भी लोग मिलके जो खेत प्रोडक्शन करते कॉपरेट करके जो फार्मिंग होती वो कॉपरेटिव फार्मिंग थी. लेकिन गवर्नमेंट फार्मिंग वो फार्मिंग होती जिसमें ओनरशिप किसके हाथ में होती, गवर्नमेंट के हाथ में होती है. जो भी लेबर्स मंथली या वीकली उस जगह पे काम कर रहे हैं उनको मंथली या वीकली वेजेस दिए जाते हैं, सैलरी प्रोवाइड की जाती है. लास्ट वन इज़ कैपिटलिस्टिक फार्मिंग. अंडर दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग द लैंड ओनर्स इन्वेस्ट कैपिटल फॉर फार्मिंग. द मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स इज डन बाय द रियलाइज्ड मैनेजर. द ओनर बियर द लॉस ऑफ प्रॉफिट. मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट सच एज दोज इन शुगर इंडस्ट्री परचेज लैंड एंड ग्रो शुगर केन ऑन इट देमसेल्फ. कैपिटलिस्टिक फार्मिंग वो फार्मिंग है जहाँ पे लैंड का जो ओनर होता है वो फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करता है और मैनेजमेंट वो इज़ डन बाय द रियलाइज मैनेजर. रियलाइज मैनेजर इन द सेंस वो मैनेजर जो उस लैंड ओनर जिसको अपॉइंट करता है उसकी फार्मिंग के लिए. द ओनर्स बियर द लॉस ऑफ प्रॉफिट. अब इसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो. मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट सच एज दोज इन शुगर इंडस्ट्री परचेज लैंड एंड ग्रो शुगर केन ऑन इट देमसेल्व्स. थैंक यू.